آج جو ہمارا لیکچر ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں وہ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کوڈ آف ایتھکس. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اگر ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، جو بھی ہم نے کرنا ہے، مطلب کہ ڈیولپمنٹ سے لے کے ٹاپ لیول تک، تو جتنا کام بھی ہم نے کرنا ہے وہ ہمیں اس کو ایک خاص اخلاقیات کے اندر اس کو کرنا ہے، جس کو ایتھکس کہتے ہیں، مورل پرنسپلس کہتے ہیں. کہ مورل پرنسپل کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر ہم نے اس کو سامنے رکھ کے ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. کچھ خاص ایتھیکل پرنسپل ہوتی ہیں، ان پرنسپل کو سامنے رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. تو ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ. پروفیشنل ایتھکس کو ہم نے فالو کرنا ہے. پروفیشنل ایتھکس کیا ہے؟ پروفیشنل ایتھکس ہمارے پاس ایک سیٹ آف کچھ مورل پرنسپلس ہوتی ہے جو آپ جب گروپ میں کام کرتے ہیں، ایک خاص ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کوئی ڈیٹا کلیکشن کر رہا ہوتا ہے، کوئی ڈیزائن بنا رہا ہے، کوئی امپلیمنٹیشن، ٹیسٹنگ اینڈ مینٹیننس ڈاکومنٹیشن. تو سافٹ ویئر انجینئر کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ہر ایک پوائنٹ پہ ہمیں ایتھیکلی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے، مورل پرنسپلس کو فالو کرنا پڑتا ہے. جیسا انہوں نے کچھ ڈیفائن کیا کہ کمپیوٹر ایتھکس از اے سیٹ آف مورل پرنسپل دیٹ ریگولیٹ دا یوز آف کمپیوٹر. کے کمپیوٹر کو آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے، تو یہ کمپیوٹر ایتھکس ہو گئے. دوسرا ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ ایتھکس، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایتھکس، کہ جو پروڈکٹ بھی ہم بنا رہے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل سے گزار کے کمپلیشن تک لے کے جانا ہوتا ہے. سارے اسٹیجز میں ہم نے ایتھیکلی اپنے آپ کو باؤنڈ رکھنا ہوتا ہے. آئی ٹریپل ای نے جو باؤنڈریز رکھی ہے ان کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. جو ہمارے پاس کاپی رائٹس وغیرہ کے پرنسپلس ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اوپن سورس ڈیولپمنٹ میں جتنی چیزیں ہم سورس کوڈ اٹھاتے ہیں، وہاں سے ہمیں کاپی رائٹس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تو ایتھیکلی ہمیں اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے، تب جا کے آپ ایک اچھا، ایک ایفیشینٹ پروڈکٹ بنا سکیں گے. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ایتھکس سے مراد یہی ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ جب نیگوشیٹ کریں گے نا، فری لانسنگ پہ کوئی پروجیکٹ آپ نے اٹھانا ہے، جو بھی کرنا ہے، تو آپ نے 3 چیزوں کو اپنا اصول بنا کے اس کے ساتھ فائنلائز کرنا ہوتا ہے. ایک ہے جو بھی پروڈکٹ بنانا ہے اس پہ کتنا ٹائم لگے گا، دوسرا کس کوالٹی کا پروڈکٹ بنانا ہے، تیسرا اس پہ کتنا بجٹ آئے گا. تو یہ 3 چیزوں ذہن میں رکھنی ہوتی ہے ہمیں، جس کے بیسس پہ ہم آگے جا سکتے ہیں. Why is ethics important in software engineering؟ ٹھیک ہے نا، یہ ہم بات کی ہو رہی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایتھکس، اخلاقیات کیوں امپورٹنٹ ہے. یہ تو ظاہری کامن سینس والی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے کسٹمرز بڑھ جائیں، میرے کسٹمر اور بھی ہو جائے. آپ ایز اے فری لانسر کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہو، آپ ایتھیکلی اسٹرانگ نہ ہو، تو کوئی بھی آپ سے کام نہیں کروائے گا. اگر آپ کی ایتھیکلی آپ اسٹرانگ ہیں، آپ مطلب ہے کہ اخلاقیات آپ کے اچھے ہیں، تو اسٹارٹ میں لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ کوڈ آف ایتھکس موسٹلی کس چیز پہ فوکس کرتا ہے؟ ہائی کوالٹی سافٹ ویئر پہ، کہ ایک ہائی کوالٹی پروڈکٹ آپ بنا کے کسٹمر کو دے دیں، تو نیکسٹ ٹائم وہ کسٹمر آپ کا کیا ہوگا، پرماننٹ بنتا جائے گا. صرف ہائی کوالٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک اچھا پروڈکٹ آپ نے دے کے دینا ہے بلکہ اچھے داموں پہ کسٹمر جن پیسوں پہ $1000 پہ $500 پہ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو زیادہ تر فرسٹ ٹائم آپ نے اس کو تنگ نہیں کرنا. جن پیسوں سے وہ کروانا چاہتا ہے اسی سے آپ وہ پروڈکٹ اس کے لیے کمپلیٹ کر کے دے دیں، تو نیکسٹ ٹائم وہ آپ کا ایک اچھا خاصا کسٹمر بن جائے گا. جس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں، انفارمیشن نکالتے ہیں، اسپیسیفائی کر لیتے ہیں فنکشنل نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں، پھر اس کا سافٹ ویئر ڈیزائن، سافٹ ویئر آرکیٹیکچر بناتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اور مینٹیننس ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں. تو یہ 5 فیزز جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے، اس سے ایک پروڈکٹ ہمیں اینڈ میں بن جاتا ہے، جو جس کی بینیفٹس، ایڈوانٹیجز آپ کو بھی ملے گی، آپ کی کمپنی کو بھی ملے گی، اور کلائنٹ بھی آپ سے خوش ہوگا جب ہم ایتھیکلی ڈیولپمنٹ فیز سے اس پروڈکٹ کو گزاریں گے. ٹھیک ہے نا. بے شک آپ کسی جگہ پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ہر ایک بندے ایک دوسرے بندے سے روڈ ہے، ایک دوسرے ایتھیکلی ویک ہے لوگ،
तो वो काम सही नहीं कर सकेंगे और वो जो इत्तेहाद है वो टूट जाएगा। ठीक है ना, ये तो सिंपल सी बात है। ग्रुप में अगर आपने काम करना है, ग्रुप में आपने थीसिस करने हैं, दो तीन दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, अगर इन तीनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का वो नहीं है, इस अखलाकियात एथिक्स नहीं है, तो वो जो ग्रुप है वो बाद में टूट जाएगा। तो सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है वो भी ग्रुप में ही होती है। हमें वही वाटरफॉल है, एजाइल है, वही मेथोडोलॉजी जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। और वो क्या होती है, वो टीम वर्क का आउटपुट होते हैं। सारे टीम मेंबर्स मिल जाते हैं और टीम वर्क मिलके हमें एक प्रोडक्ट बना के दे देता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे एथिक्स उस पर। हाउ डू वी डिफाइन एथिक्स? एथिक्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है ना। हाँ, तो ethics is based on well-founded standards of right and wrong that prescribe what humans have to do। तो इस सिंपल सी बात है। इस हमें जो चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ राइट है, जो गलत है वो एथिकली वीक है, जो सही है वो एथिकली स्ट्रांग है। इन टर्म्स ऑफ राइट्स, जो क्रिटिक्स लोग करते हैं, ऑब्लिगेशंस, सोसाइटी से फायदा उठाते हैं, फेयर होते हैं, सिंसियर वगैरह होते हैं। तो एज एथिकल बंदा, एक अखलाकियात एक से बंधा हुआ बंदा एक सोसाइटी में रहेगा तो उसकी जिंदगी आसान होगी। एक इथिकली स्ट्रांग बंदा, एक अखलाकियात से भरपूर बंदा, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेगा तो वो बहुत आगे जाएगा। अगर वीक है तो एक खास टाइम आ जाएगा वो लोग उससे कस्टमर्स के खत्म हो जाएंगे या कंपनी में भी उसकी जगह नहीं होगी, क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है वो उस पे ज्यादातर ऑब्लिगेशंस आती है। सो बीइंग एथिकल इज डूइंग व्हाट द लॉज रिक्वायर। तो अपनी बाउंड्रीज होती है, जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग वाला बंदा है उसको उसी पे फोकस करना चाहिए, जो डिज़ाइन बना रहा है उसको डिज़ाइन पे फोकस करना चाहिए, जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है उसको इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना चाहिए। टेस्टिंग इस तरह वैलिडेशन, हर एक को अपनी बाउंड्री पहचाननी पड़ती है। अगर एक बंदा दूसरे के काम में घुसेगा, दूसरा तीसरे के काम में घुसेगा, इंटरेक्शन करेगा, इंटरप्शन होगी, तो फिर वो सिस्टम जो है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं सॉफ्टवेयर टीम मेंबर में, फिर क्या हो जाएगी, वो एथिकली वो वीक हो जाएगी और काम नहीं हो सकेगा। ठीक है ना। तो एथिक्स कंसिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर आवर सोसाइटी एक्सेप्ट्स। ठीक है ना, या तो उन्होंने सोसाइटी की एग्जांपल दी है ना, सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, बर्दाश्त का मादा हो, हर एक बंदा अखलाक से पेश आ रहा हो, तो जहाँ उस सोसाइटी में जो भी इत्तेफाक भी होगी, इत्तेहाद भी होगी, अगर वो एक काम करना चाहते हैं वो भी भरपूर और अच्छे अंदाज से हो सकेगा। तो यहाँ हमारी सोसाइटी कौन है डेवलपमेंट वाली, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो वाटरफॉल वाले 5 स्टेजेस है, इससे जो प्रोडक्ट ने गुजरना होता है, तो वो इतिकली आपको ये स्टेप ईमानदारी से फॉलो करने पड़ते हैं। तो 8 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स है कि एक प्रोडक्ट को आपने जहन में रखना है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, कॉपीराइट्स वगैरह ये सारी चीजें जहन में रखनी होती है। दूसरा ये है कि पब्लिकली वो एक्सेप्टेबल हो। पब्लिकली जो भी चीज आप बना रहे हैं मार्केट में, लोग जो है उसकी तरफ रागे हो, तो कि आप किस तरह यूजर फ्रेंडली उस एप्लीकेशन को बनाए कि लोग उसको एक्सेप्ट कर ले और डाउनलोड कर ले, यूज में ले। आप अपनी उसने मार्केट में compete करना है, तो ये 8 प्रिंसिपल है जिसमें जजमेंट भी आ जाती है। अगर कोई उसको जज करना चाहे तो उसके पॉजिटिव पहलू ज्यादा हो उस एप्लीकेशन के जो आपने बनाया है या आप बनाने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट को ज़हन में रखना होता है, प्रोडक्ट के अलावा पब्लिकली एक्सेप्टेबल हो, लोग अगर उस पर जजमेंट देना चाहे तो हर एक बंदा कि हाँ ये बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, कोई नेगेटिविटी उसमें ना हो। दूसरी ये है कि जो एप्लीकेशन आपने बनाया है या बनाने जा रहे हैं, क्लाइंट और जो बनाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग दरमियान में ना हो। तो ये क्या है, इथिकली उस सिस्टम को और भी स्ट्रांग बनाएगा। जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, जो टास्क को असाइन कर टास्क को डिवाइड करते हैं, फिर उसको अलग मॉड्यूल पे जब वो डिवाइड हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो फिर उसको डिवाइड कर लेता है। प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन से आपने गुजर रहे हैं, उस प्रोफेशन में हमें क्या करना है, उस प्रोफेशन में
हमें सिंसियर होना होगा, एक सिंसियर तरीके से जो डेटा फिल्टर कर रहा है वो उसके साथ सिंसियर हो, जो डिज़ाइन बना रहा है वो डिज़ाइन में सिंसियर हो के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किस तरह बनना चाहिए, उसका आर्किटेक्चर किस तरह होना चाहिए। ईआरडीज में बेशक आप मॉडलिंग कर रहे हैं, यूएमएल ब्लॉक्स बना रहे हैं, जो भी है, तो प्रोफेशन के साथ आपने सिंसियर हो। कुलीग से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कुलीग्स, कि आपका जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ के जितने भी लोग आप जॉइंटली काम कर रहे हैं, आपके जितने कुलीग्स हैं, सब कुलीग्स का आपस में जो फ्रेंडशिप है वो यूजर वो फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बंदा अच्छा काम कर सकता है, बोरियत कम होती है, जहन पे टेंशन नहीं होती। तो कुलीग्स में आपस में आप एथिकली एक दूसरे के साथ आप लोग स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा कि सेल्फ खुद एतमादी होनी चाहिए अपने आप पे, कि जो टास्क आपको दे दिया जाता है उसी टाइम पे उसी स्केड्यूल में वो डिलीवर करके देना होता है। तो ये 8 प्रिंसिपल है, उसके अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एथिकली इन प्रिंसिपल्स का क्या क्या रोल है। ठीक है, जो हमने समराइज वर्जन में उसको डिस्कस कर दिया। कोड ऑफ एथिक्स, फीडबैक फॉर्म, feedback from code of ethics feedback from में देख देखें, sent to all software engineers with concentrated to IEEE members or a principal area surveyed response options range। इसका मतलब ये है कि IEEE ने जो बाउंड्रीज रखी होती है कि यहाँ पे आप ओपन सोर्स डेवलपमेंट में कुछ को सोर्स कोड हम उठाते हैं, उसको अपडेट करते हैं, उससे अपना काम निकालते हैं, तो उन्हीं को हमें टारगेट करना है कि उससे हम ने बाहर नहीं जाना। कॉपीराइट्स पे हमने फोकस करना है, किसी और की फाइल्स को हमने चुराना नहीं है इलीगल तरीके से। तो जब इन 8 प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ओपन भी हम अपने आप को डेवलपमेंट कर सकेंगे। तो जो अनसर्टेनिटी है डेवलपमेंट डेवलपर की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो डाउट से निकल जाएगा। जब भी आप एप्लीकेशन बनाना है, आपने एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट जो है, तो रिक्वायरमेंट्स जहाँ पे आप डाउट में है, अनसर्टन है, उनको क्लियर कर दें। कस्टमर के साथ डिस्कशंस करते 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 जो हमारे प्राइम स्टेक होल्डर हैं उनसे डिस्कशन करते हैं, इसको आपने स्ट्रांगली अपोज करके इसको सर्टन बनाना है। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी खत्म करनी है, और स्ट्रांगली उस पर फेवर, जिस टास्क जो एप्लीकेशन आप बनाने जा रहे हैं, वेबसाइट है कोई या एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, कोई गेम है, जो भी है, तो उसमें अनसर्टन एरियाज को आपने क्लियर करना है। जो अनसर्टन एरिया आप क्लियर नहीं करेंगे तो वो क्या, वो कहाँ पे उसका नतीजा निकलेगा, उसका नतीजा वो होगा कि एक एप्लीकेशन बनेगा जिसकी इफिशिएंसी जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं होगी, और तो फिर क्या एंड में आएगा, इथिकली बॉस आपसे क्वेश्चन करेगा, फिर आप इसमें बंदा लड़ पड़ता है। ये लड़ पड़ने का मतलब ये कि आप पे बोझ आएगा, एक जो है इस इसका जो आउटपुट है जो गलत आया है, एक दूसरे पे डालेंगे, एक दूसरे पे डालेंगे, तो इथिक्स के लिए जो अखलाकियत है वो फिर खत्म हो जाएगी। तो इस अनसर्टेनिटी को हर हाल में खत्म करना होगा। दूसरा ये हमारे पास हम जो आता है कि प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स, कि हम जो प्रोडक्ट्स आप बनाने जा रहे हैं मार्केट में, इससे compete करना होता है, उसमें सॉफ्टवेयर की जो स्पेसिफिकेशन है वो क्लियर कर ले। स्पेसिफिकेशन को फुली उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इस प्रोडक्ट की थी वो क्या थी, किस तरह इसने मार्केट में कंप्लीट करना होता है। प्रॉपर मेथोडोलॉजी जिसके थ्रू आप इसको बनाने जा रहे हैं, वाटरफॉल है, इंक्रीमेंटल है, एजाइल है, वो क्या होनी चाहिए। मैनेजमेंट टीम अच्छी होनी चाहिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट इस पे कितना आएगा, कितने टाइम में इससे डिलीवर होना है, किस किस क्वालिटी का, किस नौइयत का प्रोडक्ट हमने बनाना है, और हर एक पॉइंट जो काम भी आप करेंगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी होनी होनी चाहिए। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, डिबगिंग, ये सब कुछ उसका हिस्सा होना चाहिए। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सुटेबल क्वालिफाइड हो, मार्केट में compete कर सके, और दूसरा उसकी स्पेसिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए। जो मैनेजमेंट टीम है वो अच्छी गुड होनी चाहिए, टेस्टिंग उसकी
प्रॉपर होनी चाहिए। जो डेटा आप इसमें यूज कर रहे हैं क्या वो लेजिटिमेटली वो लीगल है या इलीगल है, फ्लॉस को हमें एड्रेस करना चाहिए। कंटेंशियस इश्यूज क्या होनी चाहिए, क्या मैक्सिमम क्वालिटी है, मिनिमम कॉस्ट उस पर कितना आएगा, इंडस्ट्री में हमने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं। तो ये सारे 15 पॉइंट जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है पहले प्रिंसिपल में। तो दूसरा है पब्लिक है कि डिस्क्लोज एनी सॉफ्टवेयर रिलेटेड डेंजर्स, कि इस एप्लीकेशन जो आपने बनाया है या बनाने जा रहे हैं इससे क्या खतरात है, पब्लिकली लोग इससे क्या खतरा फील कर सकते हैं। जब वो सेफ हो तभी आप जाके उसको अप्रूव कर ले, टेस्ट कर ले और ऑपरेशन में ले आए और फिर डॉक्यूमेंट साइन कर ले। हाँ अब ये जो एप्लीकेशन आपने बनाया है इससे पब्लिकली कोई मसला नहीं होगा, तो तभी प्ले स्टोर वगैरह पे आप इसको डाल सकते हैं। पब्लिक लोगों में मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके फायदे बता सकते हैं कि जो वेबसाइट है या गेम है या डॉट एप्लीकेशन है ये मैंने बनाया है, आप इस एंगल से इससे फायदा उठा सकते हैं और डाइवर्सिटी बयान कर सकते हैं। इसकी फेयरनेस ट्रस्टफुल हर मैटर में वो बयान कर सकते हैं। पब्लिकली लोगों को आपको कायल करना पड़ता है, लोगों के प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसको आप यूज में ला के इसकी मार्केटिंग और भी तेज कर सकते हैं। जब तभी जाके आपका प्रोडक्ट जो है फ्लरिश करेगा प्ले स्टोर पे। अब व्यूअर आपके ज़्यादा यूजर आपके ज़्यादा बनते जाएंगे तो पब्लिकली इसको आपने वो मेंटेन रखना होता है। जजमेंट क्या है कि प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए इस एप्लीकेशन का, तो प्रोफेशनली इस सोसाइटी में इसका क्या एस्पेक्ट्स होगा लोगों पे, डॉक्यूमेंटेशन में ये सब कुछ आपने लिखना होता है। और ब्राइबरी मतलब है कि करप्ट चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड नहीं करनी, लोगों को करप्ट तरीके से इस एप्लीकेशन को नहीं बेचना, सीक्रेट पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करनी क्लाइंट से, बल्कि ओपनली आपने क्लाइंट से निगोशिएट करना है। अगर आप वन टू वन आपने काम नहीं करना, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, तो सीक्रेटली आप क्लाइंट से ना मिले बल्कि अपने बॉस के थ्रू आपने इस एप्लीकेशन पे काम करना है। कि जजमेंट का मतलब कि लोगों की राय आपके बारे में क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह काम करना है कि आप ये पॉइंट्स आप क्लियर कर दे तो फिर आप एप्लीकेशन को की जो डेवलपमेंट है लोग जब आप पे जजमेंट करेंगे कि हाँ इसने जो ये डेवलप की है, बेशक वो किसी एक फील्ड में आप काम कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन में या डिज़ाइन में या इम्प्लीमेंटेशन में या टेस्टिंग में या डॉक्यूमेंटेशन में, तो इन पॉइंट्स को जब आप देखेंगे इन्हीं के बेसिस पे ब्राइबरी एक्सेप्ट ना करो, सीक्रेट पेमेंट्स क्लाइंट से ना लो, पेमेंट एक सौ जब आप जॉब कर रहे हैं तो आप सीईओ को जॉब दें ना कि क्लाइंट को तभी आप जॉब दें हैं जब आप उसकी मर्जी के मुताबिक एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को ख़त्म कर लें, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए क्लाइंट के साथ, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जजमेंट, टेक्नोलॉजी को आपने चेक करना है वो भी अखलाकियात के अंदर। तो ये सारी बातें हैं जो जजमेंट से रिलेटेड है जिसके थ्रू आपकी जो डेवलपमेंट स्किल्स हैं लोग उसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे या नेगेटिव तरीके से, तो आपकी पर्सनैलिटी भी इससे रिफ्लेक्ट करती जाएगी। तो ये जहन में क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो अच्छी होनी चाहिए, सिंसियर होनी चाहिए, एथिकली। तो क्लाइंट भी सेटिस्फाई होगा, एम्प्लॉयर भी सेटिस्फाई होगा, एम्प्लॉयर और जब भी इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है कम्युनिकेशन है एथिकली वो वीक होगी तो क्लाइंट किसी और एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा। तो आपने हर हाल में क्लाइंट को काबू करना होगा। काबू करने का मतलब है कि आप उसको एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट डिलीवर कर दे उसी बजट में और उस टाइम में जिस टाइम में वो चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इस पर जब आप एड्रेस कर लेंगे तो कई क्लाइंट और एम्प्लॉयर के दरमियान एथिकली रिलेशनशिप वो स्ट्रांग बनती जाएगी। मैनेजमेंट टीम का बहुत बड़ा रोल होता है कि जब वो एप्लीकेशन बांट रहे होते हैं अपने डेवलपर्स के दरमियान, डेवलपमेंट टीम के दरमियान, कि कुछ लोगों को बता देते हैं कि आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करें, फिर उसको एनालाइज करके फिल्टर करके इंफॉर्मेशन निकाले, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आप डिवाइड कर ले उसी रिक्वायरमेंट को, फिर उन्हें को जाके कुछ लोगों को डिज़ाइन में का काम देते हैं, कुछ लोग पेवर कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट टीम उनसे टेस्टिंग करवाते हैं, कुछ उससे डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये स्टैंडर्ड्स को देखता है कि एम्प्लॉय स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं कि नहीं,
जो उनके पास नॉलेज है कॉन्फिडेंशियली प्रोटोकॉल जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है वो सही कर रहे हैं या नहीं, वर्क को असाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंस। जो टॉप प्रायोरिटी वन है उसको ये काम दे दो, दूसरे को ये, तीसरे को दो। वहाँ कोड वायलेशंस को देखना होता है कहीं कोड वायलेशन तो नहीं हो रही है, तो ये सारा काम मैनेजमेंट वाले लोगों का काम होता है। तो ये सारे पॉइंट्स इन्होंने एड्रेस करने होते हैं। और मैनेजर जो टॉप लेवल का होता है उसमें लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। प्रोफेशन जो है, जो प्रोफेशन भी आप कर रहे हैं उसमें आप एथिकली आपको क्या करना होता है, आपको सिंसियर होना पड़ता है कि अपने आप को रिप्यूटेबल जो स्ट्रांग बंदे हैं उनको साथ एसोसिएट करते जाए, ना कि करप्ट लोगों के साथ, ना कि वीक लोगों के साथ। कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रोफेशन में, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। फॉलोअर्स ऑफ दिस कोड, जो कोडिंग आप कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ओपन सोर्स डेवलपमेंट में उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको देखे उन्होंने क्या क्या सजेशन इस पे दी है, किस तरह इस पर और इम्प्रूव हम कर सकते हैं। डेवलप एक इथिकल एनवायरनमेंट, एक अखलाकियाती एनवायरनमेंट माहौल आपने हर हाल में मेंटेन रखना होता है जिस एरिया में, जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं। सस्पेक्टेड, जहाँ पे आपको ये शक हो कि जहाँ पे चीज़ों की वायलेशन हो रही है, बेशक वो कोडिंग की है या किसी और डिज़ाइन वगैरह की है, तो उसको रिपोर्ट करते जाए ऊपर कि उससे स्टार्ट में निपटा जाए, ना कि फिर एंड में वो उससे ज़्यादा के ज़्यादा नुकसानात आ जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एरर, जो अगर एरर आ रहा है तो एक दूसरे पे ना डाले, अपनी गलती को खुद ही तस्लीम कर ले, एक्सेप्ट एरर, अप्रोप्रिएट रिम्यूनरेशन। तो ये सारे जो 13 पॉइंट्स हैं ये प्रोफेशन से रिलेटेड है कि इथिकली हमें अपने प्रोफेशन में एक कमिटमेंट के साथ इथिकली इन्वायरमेंट बना के हमें वहाँ पे काम करना होता है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठानी पड़ेगी। पब्लिक नॉलेज हमें देखना होता है, और सॉफ्टवेयर नॉलेज जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए उसी प्रोफेशन में, कि वो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो एक अच्छा प्रोडक्ट एंड में बन जाए। कुलीग्स जो है वही प्रोफेशन में हमारे जितने भी कुलीग्स हैं, एक यूजर फ्रेंडली माहौल हमें मेंटेन रखना होगा कि जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं एक एफिशिएंट प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोलीग्स में अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप में इसकी मिसाल इस तरह है। बात इंडस्ट्रीज जो है जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो वाले काम कर रहे हैं, वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे दामों, तो फिर वो जो सीईओ वगैरह है वो अपनी डेवलपमेंट टीम को बोनसेस भी देते हैं, और कहीं पे लंच डिनर अरेंज कर लेते हैं, या किसी हिली एरिया में उनके लिए ट्रिप अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको मोटिवेशन करने के लिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। कोलीग्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग भी इससे बढ़ जाती है उनको। तो फिर नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट्स उनको मिलेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले हैं, तो जो वो उससे भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो पहले से कोलीग्स के आपस में रिलेशनशिप भी अच्छा बन जाता है। तो जो जहाँ पे हर एक दूसरा बंदा को काम करना उनके लिए आसान हो जाती है, और उसको वो अपने आप को उसमें इंटरेस्ट शो करता है कि ये काम जो है इंटरेस्ट से वो फिर वो करता है। अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए कि फर्दर improve your professional knowledge, improve your ability, produce quality work, अपनी एबिलिटी को इतने इम्प्रूव कर ले कि डॉक्यूमेंटेशन वाला काम भी आप खुद कर सके, अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट वो भी इम्प्रूव कर ले, नॉलेज ऑफ रिलेवेंट लेजिस्लेशन रूल्स कवानीन इन सब में अपने आप को इम्प्रूव रखें, नॉलेज फॉर द कोडिंग, सोर्स कोड, कोडिंग को ढूंढना, कोडिंग को पॉलिश करना, उसको फिल्टर करना, अपडेट करना, इस इम्प्रूव करना चाहिए। अपने किसी को फोर्स ना कर ले कि वो कोडिंग के वायलेशन कर ले, कॉपीराइट्स में मसला कर ले, कोड वायलेशन, इनकंसिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ इनकंसिस्टेंसी होती है। अगर आप कोड वायलेशन कर किसी दूसरे का कोड चुराते हैं, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हम इम्प्रूव करेंगे तो हमारे पास जो अपने अंदर जो स्किल्स वगैरह है वो और भी स्ट्रांग होते जाएंगे। ठीक है ना, प्रियम्बल का क्या मतलब है? Software engineer are those who contribute by direct participation or by teaching to the analysis, specification, design. The prevalence of software in society provides significant prevalence का मतलब है कि आपने क्या करना है, आपने वो सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है,
फिर डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, जो भी चीज़ आप काम करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने हर एक पॉइंट पे कंट्रीब्यूट करना होता है। अपनी एफर्ट्स को यूज़ करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना के दे देता है। कोई पीस मील मतलब कि बनी बनाई चीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि अगर ओपन सोर्स कोड उसको मिल भी जाता है तो 10-20% एटलीस्ट वो उसको अपडेट करता है, ना कि बिल्कुल स्पून फीडिंग पे वो डिपेंडेंट हो। ठीक है ना? तो ये पॉइंट हमारे पास हो जाता है प्रिएम्बल। तो हमारे जो आज का लेक्चर था इसमें क्या था, इसमें हमारे पास ये 8 प्रिंसिपल जो थे ये इम्पोर्टेंट थी। ये 8 प्रिंसिपल हमारे पास कौन थी? प्रोडक्ट पब्लिकली स्ट्रांग होने चाहिए, जजमेंट, क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, प्रोफेशन, कोलीग, सेल्फ। तो इन्हीं को जब हम फॉलो करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एथिक्स हैं जो 8 थे, इसमें हमने अपने आप को स्ट्रांग किया। अपनी अपना अगर अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, इसमें इसी चीज़ों पे को हमने टारगेट किया, तो जो वहाँ पे काम होगा वो डेवलपमेंट टीम हमारी बनेगी। जो प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आसानी के साथ हम उसको रिजॉल्व कर सकेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स है सिर्फ इसी जगह पे अखलाकियात की जरूरत नहीं, बल्कि सोसाइटी में हर एक पॉइंट पे जहाँ भी आप हैं, बेशक घर में है एक अच्छे बेटे की शक्ल में है, एक अच्छे भाई की शक्ल में है, एक अच्छी शौहर की शक्ल में है, एक अच्छी एम्प्लॉय की शक्ल में है। अगर आप इथिकली स्ट्रांग हैं, अगर एक अच्छे डेवलपर की शक्ल में है, आपकी अखलाकियात अच्छे हैं, तो आपकी ज़िंदगी हर हाल में आसान होगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है बर्दाश्त। आप राइट है, दूसरा रॉन्ग है, फिर भी वो आप वो फिर भी आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और उसकी इस्लाह कर रहे हैं सब्र के साथ। तो क्या होगा, एक टाइम आ जाएगा कि वो उसकी इस्लाह हो जाएगी। और अगर दोनों एक दूसरे पे चपट पड़ते हैं तो बेशक वो, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम का हिस्सा है या किसी घर में बाइक बन के रह रहे हैं, किसी माँ बाप के साथ इसका या किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या टेंशन और डिप्रेशन में होंगे और आपकी पर्सनैलिटी है वो और भी नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स में हमें इन 8 पॉइंट्स को हर हाल में एड्रेस करना पड़ता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिटेल के साथ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो कोई क्वेश्चन है